Shabnam, are you okay? Hey, Anshu. Hey, money got dropped. Can you hear me, Anshu? Am I audible? No? But I'm speaking. Yep. Yep. You need to fix your mic issue. Hello, Kushi. Hello, Renu. Hello, Evening, sir. Nisha. Moni, you just got dropped. Yes, sir. Network issue. Okay. So, what are we studying? What was the homework? There was some homework? No, sir. No? No. Oh, okay. Yesterday I asked you to just learn how to analyze what you listen to, Yes, analyze sir. what you read, and arrange words accordingly, isn't it? Yes. Yeah. Okay, good. Good Hey, evening, sir. Ganpat. Good evening, Ganpat. So let's see. Some days are very weird. Today is a weird day. No, sir. Very interesting lesson today we are gonna have. The last lesson, sir. Hmm. Yes, sir. Okay. See, today's lesson is about ed adjective and ing adjective. Very important lesson. Okay, sir. Okay, everybody, let's see. This confuses a lot of people. Okay, so Good you evening, see, sir. good evening, Sanyukta ma'am. Which page number, sir? Page number 60, I think, 52. Page number 52. Yes. Hmm. Hey. Anshu says my mic is not connected and shows this. What is her problem? Hmm. Hello. Oh, good evening, sir. Yes, Anshu, I can hear you now. Yeah. Good evening, sir. Hello, Kashif. Okay, people. So, like I said, some days are weird. Today is a weird day in a way. Um, why is it weird? I don't know, but it feels weird. Okay, are the windows open? Let me close the windows first of all. Give me a chance. Give me a moment. Okay, give me a moment. Sorry. Hello, everybody. Hello, ma'am. How Hi, are ma'am. you? Hello. Moni, you read my sentences in group. No, actually. Oh. Ganpat, you? Ganpat, you No, because read my. no, I am busy. Okay. Little bit. Busy, busy. You're busy to read your friend sentences in the group. Okay, I'll tell you how people get busy. You're not busy, you're just lazy, guys.
You don't understand the value of certain things, reason. I'll be right back again. Give me another second. Keep adding the people when they come, okay? I'll be right back. Exciting. What's it? Me? Okay, so vocabulary and listening, describing feelings. Yes, people. Sanyukta ma'am, I read your sentences and they were good, very good actually. Okay. And sir. the point is not whether your sentences are good or not good. The point is, अगर हम कोई इंग्लिश सेंटेंस सुनेंगे तो उसके अलग अलग हिस्से को एनालाइज कर सकते हैं अपने हिंदी के Yes, हिसाब sir. से मैच करा के हाँ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं. और वही चीज को गौर करना इज इंपॉर्टेंट. ओके. Only 3 numbers, sir. Your phone number also. 3 or 4. I'm sorry. I didn't ask you to do anything. No, Oh, I very didn't good. ask you to do anything. I'm just starting the lesson. And Kushi, you could use your mobile phone today for a change, You could use your mobile phone to attend the class and walk around if you want. Maybe if you don't want to be stuck where you are, then you can simply use your phone and maybe be with somebody else as well. No shoes. Okay, math. Can't do multitasking, sorry. You don't like that. That's what you're saying. I can't able to focus in the class at that time. This is a very common mistake. Can't able to. Okay. आदत बनी है. स्कूल में बनी है. Sorry. स्कूल में किसी आपकी गलती नहीं है. मेरे बिहार में लड़के भरे पड़े कांट टेबल वाले. ठीक है दोस्तों. कांट एबल टू. कांट एबल टू. स्कूल के गिफ्ट है ये. कांट एबल टू. ओके. सिर्फ कांट. I can't do this. I can't focus. I can't handle. I can't able to handle me. I can't handle. Everyone? Or दूसरा, I'm not able to handle. I'm not able to handle. Right? Yes. I can't handle. I'm not able to handle. Okay. Vocabulary and listening. Describing feelings. Guys, look at these people. Are they all feeling the same feeling or they're feeling different feelings? Different feelings. They are all feeling different feelings, right? Yeah. B is feeling a positive feeling, but E is feeling a negative feeling. F is feeling a negative feeling. C is also feeling a negative feeling. D is feeling a positive feeling. A is feeling a negative feeling, right, everyone? Yes. Yes, sir. Okay. So they're all feeling different feelings. Okay. Yeah. So
When I say somebody is happy, when I say somebody is sad, then happy and sad tell us how they're feeling in a way. Say yes or no. When I say somebody is happy, when I say somebody is sad, happy and sad, both these words are adjectives Yes, sir. and they tell us how the other person is feeling. Yes, sir. So we can use other adjectives as well to describe how somebody is feeling right now, isn't it? Okay. We can use other adjectives to describe how they're feeling. Okay. I'm angry. I'm very angry right now. Now, what does that mean? Angry is an adjective? Yes. And you Yeah. know how I'm feeling inside because of the word? So, can I say I'm very angry? I'm very angry. No, sir. No. Angry didn't go with that. Okay. So, have to look at these photos here, these people, and look at these adjectives, these feelings. आप बोलेंगे adjectives कैसे बोल रहे हैं आप इनको? आप इनको adjectives कैसे बोल रहे हैं? ये तो ed लगा है, तो verb है. ऐसा मन में चलेगा? चलना चाहिए? चले, कोई दिक्कत नहीं है? तो मैं बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ. Okay. Look at C. Which word do you want to connect? Boring. Bored. देख लो Tired. देख लो आप यहाँ पे, देख लो यहाँ पे. Tired. I think bored. ठीक है, अपने अपने हिसाब से मैच कर लो. पहले प्लीज मैच, पहले मैच कर. Tired. Bored. पुट ए बी सी. Tired होना चाहिए. Tired भी हो सकता है. Okay, हाँ, fine, हो गया. fine. I want you to just put the letters A, B, C, D, E, F in these boxes here. Okay, let's do it, everyone. Look at these words. Forget about the fact whether they are adjectives or not. Forget about it. Just match the expressions and the words. Match तो कर दो पहले. Match कर दो. A, worried. Okay. Match the facial expression B, and excited. Be excited. C, tired. D, interested. E, bored. match them. F, annoyed. Anish, Mahfouz, ये bored नहीं हो. not on camera. तेरा है 6 Worried. Anish, you're sick. Mahfouz, नहीं महफूज. Yes sir. what happened to you, Mahfouz? तुम्हें महफूज रखने के लिए तो महफूज नाम रखा है तुम्हारा. तुम महफूज कैसे नहीं रहे? गलत नाम हो गया सर. गलत काम हुआ. किसने किया गलत काम? गलत नाम रखा क्या सर? गलत नाम रखा है. That was nice. I liked it. अच्छा लगा तुमने ऐसा जवाब दिया. I liked it. I like people who make me laugh. क्यों चाहे मेरा मजाक उड़ जाए क्यों ना, लेकिन मजाक में ही हंसी आती है मुझे. Okay. तो आपका नाम गलत रख दिया है. सही है. महफूज. नाम महफूज कर देते हैं. नाम महफूज. Right. Opposite of महफूज is नाम महफूज, I think. What is नहीं the सर, अभी के लिए ठीक है. Okay. All right. Good. So, guys, have you matched the words and the pictures? A. Picture A. Worried. सारे लोग अपना opinion दे दो. Picture A. Bored. जो लग Worried. Okay. C. Tired. 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 I said C. I said C. I didn't say I said C. C, tired. Tired. E. Tired. E. Bored. Worried. Worried. Bored. Worried. E looks worried to you? E looks worried. E looks bored to you? Okay. F. Annoyed. Annoyed. No. Everybody, F is annoyed, right?
चलो ठीक। Bored. ऑलराइट। कौन है? Hmm? Annoyed. चलो ठीक है। बी इज Excited. B is Excited. डी Excited. No. Interested. Interested. अब सुनो, अब Interested. Excited. सुनो, ओके एवरीबॉडी लिसन। Interested. मैंने कहा दिस मैन इज एक्साइटेड। अब मुझे बताओ, मैंने वर्ब बोला कि एडजेक्टिव बोला? दिस मैन इज एक्साइटेड। Adjective. 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 महसूस करो, महसूस करो, महसूस करो। ओके जो महसूस हो वो जवाब दो। मैंने कहा दिस मैन इज हैप्पी, तो तुम्हें क्या लगता है? हैप्पी इज एन एडजेक्टिव ना? Yeah. yes sir. दिस वुमन इज सैड, तो सैड क्या लगता है? एडजेक्टिव लगता है ना? Yes, sir. अब आगे Yes. सुनो। दिस वुमन इन ए, दिस वुमन इज बोर्ड, दिस वुमन इज बोर्ड। बोर्ड क्या लगा? वर्ब लगा कि एडजेक्टिव लगा? सुन के क्या लगा? Adjective. 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 बी this man, this guy is excited. This woman, this girl is tired. This man is interested. Interesting. अरे क्या क्या तुमने कौन सा वर्ड पढ़ लिया बेटा? मैंने यहाँ कुछ Interested. कौन सा वर्ड पढ़ लिया बेटा? ऐसा कैसे करोगे? यही चीज आपके हारने की या पीछे गड़बड़ाने की वजह बनती है, आपका फोकस चला जाना। आपने जो वर्ड पढ़ा उसके साथ तो रहिए, और भी बहुत सी चीजें गौर करिए। सब में सिमिलैरिटी है बेटा, सब में सिमिलैरिटी है। देखो है कि नहीं है सिमिलैरिटी? ED. Word excited. कैसे ऐसा बोल सकते हो? कैसे ऐसा बोल सकते हो बेटा? कैसे कैसे हाँ कैसे हुआ सलोनी ऐसा? इंटरेस्टिंग मुझसे निकला कैसे? यहाँ तो गौर कर लिया था, है ना? सो दिस मैन इज, Interested. Interested. दिस वुमन इज, Worried. Worried. दिस लग नहीं रहा, चेहरे से नहीं लग रहा, टेंशन नहीं लग रहा उसको देख के। हाँ Yeah. दिस वुमन इज वरीड एंड दिस बॉय इज। Annoyed. अब Annoyed. मुझे ये पूछना है कि ठीक है कि ईडी लगा हुआ था सब में, लेकिन जब हम बोल रहे थे दिस मैन इज वरीड, दिस वुमन इज वरीड, दिस बॉय इज अनॉयड, दिस वुमन इज टायर्ड, दिस वुमन इज बोर्ड, दिस मैन इज इंटरेस्टेड, दिस मैन इज एक्साइटेड, जब मैं ये बोल रहा हूं तो आपको फीलिंग किस चीज की आ रही है? मैं क्या बोल रहा हूँ? एडजेक्टिव बोल रहा हूँ कि वर्ब बोल रहा हूँ? क्या लग रहा है आपको? Adjective. Adjective. आ रही फीलिंग? फीलिंग आ रही है कि मैं आपको बता रहा हूँ आदमी कैसा फील कर रहा है अंदर? जैसे मैं बोलूं कि एक्स वाई जेड इज हैप्पी, ओके एक्स वाई जेड इज हैप्पी, तो आपको पता चल रहा है ना हैप्पी क्या है? वर्ब है कि एडजेक्टिव है? Adjective. तो Adjective. पता चला ना, मैंने उसके बारे में बताया आपको कैसा फील कर रहा है। हाँ सलोनी इज वेरी हैप्पी टुडे, राइट? सलोनी Adjective. वेरी हैप्पी टुडे एंड महफूज इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, महफूज इज वेरी हैप्पी। खुशी इज नॉट वेरी, खुशी इज नॉट वेरी हैप्पी, खुशी इज सैड अ लिटिल, शी इज अ लिटिल सैड, ओके? तो आपको क्या लग रहा है? No, I'm not. नो यू नॉट, ओके अच्छा मुझे लगा होंगी। ऑलराइट, I'm tired. यू आर टायर्ड, ओके शी इज टायर्ड। तो देखो आपने क्या बोला? एडजेक्टिव बोला ना, अपने आप को डिस्क्राइब किया ना कि आप कैसे फील कर रहे हो, अपने बारे में बताओ। तो भाई आई एम रीडिंग अ बुक में अपने बारे में नहीं बताया, उसमें बता रहे कि हम एक काम कर रहे हैं, अपने बारे में एडजेक्टिव नहीं बता रहे। बात समझ में आ रही है? आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें अपने बारे में कोई एडजेक्टिव नहीं यूज कर रहे, हम बता रहे हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम रीडिंग अ बुक। आई वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, इसमें हमने कहा कि हम कल रात सिनेमा गए थे, अपने बारे में एडजेक्टिव्स नहीं यूज कर रहे हैं। एक एडजेक्टिव होता है जैसे कि आई एम एंग्री, आई एम अपसेट, आई एम सैड, आई एम हैप्पी, ओके आई एम रिच, आई एम पुअर। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, कुछ हमारे कंडीशंस बताते हैं, कुछ इमोशनल कंडीशंस बताते हैं, राइट? लेकिन ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। हमने कैसे बोला? आई एम रिच, आई एम पुअर, आई एम एंग्री, आई एम अपसेट। तो जब मैंने कहा आई एम टायर्ड, मैंने कहा आई एम एक्साइटेड, तो ये भी तो एडजेक्टिव ही है ना? yes sir. Yeah. सारे लोग का एहसास हुआ?
If you still have any doubts, please tell me. No, sir. All are adjective. तो मुझे क्या आप ये रूल बना सकते हो कि ईडी वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं? Yeah. Yes, sir. ओके अब ये ईडी दो फॉर्म में आता है, V2 में भी ईडी आता है, V2 V3 में में भी। भी आता है। Am I right guys? Yes, Yes. sir. ये Yes, कौन sir. सा है, ये कौन सा है? B3. V3. Good, very nice. This is V3, okay? चलो अब बोलो कि मैं क्या बोलूं, बोलता हूँ रुको। The fan is broken. The fan is Broken. Broken. फैन को डिस्क्राइब किया मैंने, No. Sir, डिस्क्राइब किया, fan is broken. एडजेक्टिव बताया फैन के बारे में, क्या बताया? Yes. फैन कैसा है, टूटा हुआ है। द फैन इज ब्रोकन। Broken. Broken. ब्रोक नहीं बोला क्योंकि ब्रोक तो V2 है। हाँ. Hmm. और देता हूँ, Bro- I am married. I am Married. I am married. I'm married. I am married. कौन, ये क्या है, वर्ब है या एडजेक्टिव है? Adjective. Married adjective. V2 है या V3 है? V3. V3. कैन वी से, क्या कह सकते हैं हम कि V3 एडजेक्टिव्स होते हैं इंग्लिश में? Yeah. कितना काम कर सकते Yes, हैं? sir. ओके। XYZ is divorced. XYZ is Divorced. Divorced. spelling DIVORS. DIVORCED. CED. Divorced. Yes, sir. So can we say that V3s are adjectives? Yes, sir. Yes. अंडा खा रहे हैं हम, उबला हुआ है। ओके, दिस एग इज Boiled. Boiled. स्पेलिंग BOILED. BOILED. नहीं, बॉयल नहीं, गलत बता दिया मैंने। अरे ये क्या है ना, फ्राई किया हुआ है, फ्राई किया हुआ है। अब बताओ कैसा है अंडा? Fried. Fried. Egg is fried. क्या है? FRI. फ्राइड एडजेक्टिव, FRIED. The egg is Adjective. fried. क्योंकि बता रहा है अंडा कैसा है, फ्राइड है। Fried किया हुआ. Fried. Fried. आप राइस खाते हो ना? Yes, sir. कैसा राइस खाते हो, कैसा राइस खाते हो? Boiled rice. Boiled. गॉट इट? Yes, sir. हिंदी में बोले तो उबला. उबला पका हुआ. हुआ, या हम लोग अपना लैंग्वेज में उसना बोलते राइट। हैं. Yes. गुड, ओके। बनाना आपको दिया, ठीक है, ऐसे 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 करके दिया, और एक उसके साथ दे दिया। जब ऐसे करके दिया तो कैसा बनाना दिया आपको? हिंदी में Flour. हिंदी में Flour. छिला हुआ। ओके, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Peeled. फील्ड। क्या था? Peeled. बनाना दिया मैंने आपको। ओके, तो ईडी वाले वर्ड्स, वर्ब 3 वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? तो दिखेगा जहां, Sir, यस बेटा, I couldn't hear that word, sir. फील्ड, PEELED, फील्ड बेटा, Okay, sir. Field. फील्ड। Thank you. I have a point to make here. Adib asked me, sir, I couldn't hear that word, sir. What is that word? So Adib now doesn't have to speak Hindi. He can ask me his confusions in English too a little bit, right? तो अब अगर इसके स्कूल में जाके कोई पूछे कि भाई आपके टीचर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो आपके टीचर्स इंग्लिश में सारा बात बोल के क्यों नहीं पढ़ाते? उनका एक्सक्यूज क्या होगा पता है? बच्चे समझते नहीं है। वो नहीं कहेंगे हमारे टीचर्स इंग्लिश बोल नहीं सकते, वो क्या बोलेंगे? बच्चे समझते नहीं हैं. अब मुझे ही बताइए, सच में रीजन क्या है? बच्चे समझते नहीं है कि टीचर्स बोल नहीं पाएंगे? क्योंकि अगर बच्चे नहीं समझते तो अदी भी तो नहीं समझ रहा था, पहुंच गया ना वहां पे जहां पर समझने लगा है। अब यहाँ से इसको अगर खाली इंग्लिश बोलने वाले टीचर्स मिले तो क्या ये कंटिन्यू अपनी पढ़ाई? He can. That's the problem. Okay, I just wanted to highlight.
He will continue to learn, but he can learn a lot more if he had 5-6 Vinay Shankar Sonis. Think about it. If he had 5-6 Vinay Shankar Sonis in his class, in his school, in different periods, then he would learn a lot more, faster and better. He will Yes, still sir. learn. He will still learn, but his learning speed will be slower. And there are schools, I tell you, okay, there are schools which actually have people like me teaching. They have no problems with the English language, and they teach history, they teach maths, they No, sir. History teacher, maths teacher, language are not very good in English, sir. I understand, Sanjukta ma'am. That is a condition of schools that we know. But there are Yes, sir. schools where the history teacher will talk like I do. Some The math, teachers speak very well, sir. Some teachers speaks very well. ma'am, I'm not. They know about Sir, English my very. history, geography, and civics teacher is same, and he speaks English Very good for you. Very good for every you. time. Very good for you. So I'm just saying, Sanjukta ma'am, what you're saying is right. Yes, Okay. yes. It is the condition of the schools we know, but there are some other schools, very expensive schools, Sanjukta ma'am. Okay. Mm. Very expensive schools. Monthly fee will be like 15,000, 20,000 rupees. You understand? Monthly fee. Okay. They have teachers who communicate in English freely, anywhere, anytime. Okay. Those teachers, if you get all your life, up to class 12, Most of the teacher communicate very well, but they do not know very well English. you're getting it wrong slightly. If somebody communicates well in English, communicates well, okay, well, not काम I चलाओ, understand, sir. What are you saying? मैं समझ रही हूँ, लेकिन इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन वो इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं. बात करना इस काम चलाओ, उससे नहीं होता. हाँ, उससे नहीं होता है. ये बात तो सही है, तो मैंने बोला तो. And I'm telling you why. Because ये स्कूल सस्ते हैं. ये बेचारे 1,000-2,000 रुपए फी लेते हैं. आप समझ रही हैं? हम्म. That's why they can't afford to have teachers like me. आप मुझे बताएं, अगर हर एक मैं जाऊं किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो I would expect 30,000-40,000 rupees a month at least, Yes, sir. right? And Yes, sir. do you think they offer 30,000-40,000 rupees to teachers, all the teachers? They have one or two teachers, senior teachers they are called, and they are offered that kind of salary. Most private schools do not offer a good salary to the teachers. That's the problem. 15 to 20,000, 15 to 20,000, right? That is Here how. offer, sir. Yes, Kalpana? In that place they offer. Here in Pune, Mumbai, or Mumbai and Pune. Pune, Mumbai, and Hyderabad is the big city, and they give more salary. Because give- the expenditure is higher too. Yes, yes, yes. If you can live on These are 20,000, high-tech city, na sir. High-tech city, na. a four-member family can live on 20,000 rupees a month in Bihar Sharif. Yes, Okay. yes. But I hope you understand. A 4-member, 5-member family can live on 20, 25, 30,000 rupees per month easily. Okay. Yes. But the same 4 or 5-member family cannot live on even 50,000 rupees in Pune, Pune, Hyderabad. Bangalore, Hyderabad, yes, sir. These are big city and very They will need twice that amount. They will need twice that amount. These are expensive places. So if the schools there offer big salary, then still it is small, in comparison to. Maybe they have a good English. They have good English. In Yes. Pune, Hyderabad, they have Yeah. good English. Ma'am, I'm just trying to say there are schools for upper middle class people, Yeah. and those schools are expensive schools, and they are not many. There are a few. I'm telling you, there are a few schools for upper class people, and those schools have good teachers, and the students learn to speak good English by the time they just pass class 8th, 9th. They start to speak good English. Yes, yes. From standard 6th class, the student speaks English, sir. Those 6 years they English. spent at school, they learned so much that they can now communicate. Why I'm saying this? मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये सब? I'm just trying to tell you, ये idea जो है ed adjective वाले, okay, ये important ideas हैं, आपको ध्यान रखना है, okay? ये however that comment came as a response to that guy Adib's question, okay?
पील्ड। ओके, अगर मैंने आपको ऐसे स्लाइस करके दिए बनानास, तो आपको कौन से बनानास दिए? पील्ड बनानास दिए क्या? क्या कौन से बनानास दिए? कैसे बनाना? Pieces. Pieces. स्लाइस बनानास दिए। कैसे बनानास दिए? Slice. Slice. SLICED, स्लाइस्ड बनाना। Yes. Slice. अब आप मुझे बताओ कि आपके पापा जब आपकी शादी कराते हैं, आपके पापा मम्मी कराते हैं, तो वो कैसी शादी है? Arranged. Arranged. अरेंज्ड है ना? अरेंज Yes. नहीं, अब उसको अरेंज ना बोलना, अरेंज। Arranged. इट इज अरेंज्ड मैरिज। होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स नाउ। Yes. Yeah. से बहस किस चीज के बीच होगी? लव मैरिज वर्सेस Arranged. Arranged. Arranged marriage. Arranged marriage. अरेंज्ड मैरिज। ओके, और ये अरेंज्ड वर्ब 3 है जो काम कर रहा है एडजेक्टिव का। तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, यस और नो? Yes. Yes. We continue. These are all adjectives, right? D3 can work as an adjective, ED adjectives. Okay, if you have any confusions, picture A, this woman is bored. As you can see, she is Bored. 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 And this woman is tired. And this woman is worried. मेरे husband को पता चल गया अब क्या होगा मेरा. All right, like that. This woman is worried. Worried. है. This guy, मम्मी पापा अकेले चले गए, हमको छोड़ दिए, खुद चले गए फिल्म देख. He is annoyed. 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 And this man is saying, अच्छा, इतना जल्दी अमीर बन जाएंगे? हाँ, he is interested. क्या? वो शादी के लिए हाँ बोल दी? अरे गजब, he is excited. Okay. Excited. Now, complete these 6 sentences with these words. Okay. Use these words to complete the sentences, everyone. Accepted. Sir, I can't hear you properly. You can't hear me properly? Sir, Yes. I can't hear you properly, sir. Really, Renu? Even now? Yes, sir. Volume is very low, sir. Well, how do you hear me? My mobile volume is sir. full. Hello? Okay. No, okay. sir. Well, volume is good, No. sir. Okay, wait. Let me check. Okay. Your voice is clear, sir. Sir, Okay. Bluetooth Network issue is in not charge my, so China I'm. side. Must be a problem on your side, Renu. Yes, sir. Hmm. But my mobile volume is full, sir. But I Reconnect. still can't hear you. Maybe you can leave the meeting and come back again. Leave the meeting and come back again. Okay, sir. I'm done, sir. Good. Very good. Shall we check?
Yes, sir. Say something, sir. So I can. No, I will say nothing. Sir. No, I will not say anything. Sorry. I will say nothing. Do you hear me? I will say nothing. Sir. Now. What do you think? You will ask me to say something and I will say Yes. something? No, I'm not your slave. What do you think of me? Sir. I will say Now nothing. I can hear you properly, sir. Okay. All right, people. Let's check. Number one, I went to bed late last night. I went to bed So late I'm last very night. So I'm very tired today. So I am Tired. tired Tired, today. So tired. tired today. today I'm very I tired. went I to am bed very late last night. So I'm very tired today. Yes, sir. I didn't sleep even a bit today. So I'm tired now. Two, my football team lost again. I'm really, Annoyed. 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 my football team lost again. I'm really annoyed. My football team lost again. I'm really annoyed. Okay. Three, I won 20,000 pounds in the lottery. I'm so Excited. 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 I can't find my house keys. I'm really Worried. 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 okay. I have nothing to do and nowhere to go. I'm so. Bored. 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 The professor gave a great lecture. I was really Interested. good job. Now listen to the audio. Let me know if you have any confusions. Tape script 6.12. 1. I went to bed late last night, so I'm very tired today. 2. My football team lost again. I'm really annoyed. 3. I won £20,000 in the lottery. I'm so excited! 4. I can't find my house keys. I'm really worried. 5. I have nothing to do and nowhere to go. I am so bored. 6. The professor gave a great lecture. I was really interested. Tape script 6.12. Is there anything that is confusing? No, sir. No. No. अभी गौर करो आपने नंबर 5 को गौर करना कुछ सीखना है देखते क्या सीखते हो आप रीड एवरीबॉडी रीड इसकी हिंदी पता है ना आई हैव नथिंग टू डू एंड नोवेयर टू गो आई एम सो bored. I have nothing to do and nowhere to go. Okay. So, Sanyogita ma'am, you understand this sentence? Yes, sir. Arrangement पे ध्यान दे रहे हैं सबके? I have nothing to do and nowhere to go. मतलब क्या हुआ? मुझे कुछ करने को भी नहीं है, कहीं जाने को भी नहीं है. Right. Everybody use the chat box, use your imagination, listen to my situation. What will a young girl of 16, 17 years of age complain about when her mother and father ask her to get ready to go to a party? Her parents ask her to go to a party. She opens the wardrobe. Wardrobe, you know, the kapde ka almirah. She Yes, sir. opens the wardrobe and she complains. वो कंप्लेन करेगी क्या करेगी दोस्तों तुम लोग मुझे लिखो इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद अगर कुछ दिमाग में आ रहा है तो इमेजिनेशन मैंने दी सिचुएशन ओके
क्या कहती है वो? कंप्लेन करती है, क्या कहती है? ज्यादातर आप लोगों को पता है लड़कियां क्या बोलती हैं, ओके? खास कर ये 15, 16, 17 साल वाली, यू नो, दे ऑलवेज हैव द सेम कंप्लेंट, ओके? Yes, sir. यस आयशा, आई थिंक यू नो। चलो चैट बॉक्स यूज करो एवरीबॉडी। सो व्हाट विल शी से? इट विल बी अ कंप्लेंट, राइट? राइट, यस। चलो सारे लोग हो गए? Yes, sir. क्या बोलेगा वही, क्या बोलेंगी वो? I have nothing to wear. I have nothing to wear. Cloth. All right. Okay. All right. Okay. Now another. Okay. One more last. There सर is a. नथिंग टू बियर ए ड्रेस या फिर बियरिंग ए ड्रेस? Oh my Beer. goodness. अंशु तुमने कचरा कर दिया मेरे बच्चे. You know. क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? नथिंग टू डू। अब इसकी हिंदी क्या हुई थी अंशु? मेरे पास कुछ नहीं है I have nothing to do मतलब मेरे पास कुछ करने नहीं। के लिए। नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। अगले सेंटेंस में I have nowhere to go. और नहीं कहीं जाने के लिए। और अभी वो लड़की क्या कंप्लेन कर रही है? हाँ, तो आई हैव नथिंग टू वेयर ए ड्रेस। देख रहे हो दोस्तों कहाँ गलती करी बच्ची? देख रहे हो कहाँ Yes. गलती करी है? यस। कैसे चलेगा अंशु? सामने है फिर भी ऐसा। उफ। वो लड़की क्या बोलती है? पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 मिनट। तो पहले ये बताओ जो चीज चाहिए वो कहाँ है? हैव के बाद है नथिंग, राइट? उसने कहा ना आई हैव नथिंग, उसके बाद क्या बोलेंगी वो? Now ever to wear. आई हैव नथिंग। नथिंग। देखो दो लोग को मुश्किल हुई है, सलोनी को भी नहीं समझ में आ रहा, अंशु को भी नहीं समझ में आ रहा। देख रहे हैं आप लोग, इसी को कहते हैं सीखने में थोड़ा देर लगाना, ओके? और ये जब देर लगे तो समय देना पड़ता है भाई। आयशा क्या बोलना है बेटा? I have nothing to wear. आई हैव नथिंग टू वेयर। बात खत्म हो गई। पहनने के लिए कुछ है नहीं। लड़कियां यही बोलती हैं कि अपना वार्डरोब खोलने के बाद पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, आई हैव नथिंग टू वेयर। फिर उसमें एक ड्रेस क्यों लगा रही है सलोनी? उसमें नोवेयर क्यों लगा रही है? मुझे नहीं पता। क्योंकि हमारी लड़कियां क्या बोलती हैं? पहनने के लिए कुछ है नहीं, पार्टी में जाना है फालतू में, हम नहीं जा रहे। ओके, आई हैव नथिंग टू वेयर। हाँ, अपना ही डायलॉग भूल गई हैं ये लड़कियां, अपना ही डायलॉग भूल गई हैं। यही तो बोलती हैं, यही लोग तो बोलती हैं आई हैव नथिंग टू वेयर। फिर एड्रेस क्यों लगा रहे इसमें? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जब ये सेंटेंस पढ़ा तुमने, इसका मतलब निकला हैव नथिंग टू डू, कुछ नहीं है करने के लिए, नो वेयर टू गो, कहीं नहीं जाने के लिए। और उस लड़की ने क्या कहा? पहनने के लिए कुछ नहीं है। No where to go party. अरे भाई, इसका क्या मतलब निकला? तुम ही बोल दो। पहले ये नो वेयर टू गो मतलब क्या निकला? कहीं भी जाने के लिए नहीं है। अब इसमें कोई और वर्ड कैसे डालोगे बीच में? नो वेयर टू गो मतलब हुआ कहीं नहीं है जाने के लिए। चलो सलोनी, तुम एक काम करो, इस हिंदी सेंटेंस में एक वर्ड बीच में डाल के दिखाओ। पार्टी वर्ड जो बोल रही हो ना, कहीं पे डाल के दिखाओ। कहीं जाने के लिए नहीं है। अब बोलो। I have nothing to do and nowhere to go. अगर कहीं जाने के लिए नहीं है। तो कहीं मतलब ना पार्टी में जाने के लिए है, ना क्लब जाने के लिए, कुछ कहीं नहीं जाने के लिए, राइट? कोई ऑप्शन नहीं है, घर पे पड़े रहना है। आई हैव नो वेयर टू गो। आई हैव नो वेयर टू गो मतलब नो वेयर बोलने का मतलब क्या हुआ? कि कोई ऑप्शन नहीं है, ना पार्टी में जाना है, ना सिनेमा जाना है, ना रेस्टोरेंट जाना है। कहीं भी जाने के लिए रहता तो कोई बोल सकता है नो वेयर टू गो। दोस्त के यहां भी नहीं जा सकते, दोस्त के यहां भी जाना होता तो नो वेयर टू गो बोल सकते थे। तो क्या सीखा? कुछ भी नहीं सलोनी। नो वेयर टू गो मतलब हुआ क्या? कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पड़े रहना है घर पे, कोई ऑप्शन नहीं, आई हैव नो वेयर टू गो।
एक नई लड़की की नई नई शादी हुई है, बहुत मस्त मस्त लड़की, नो शी लव्ड हैविंग पार्टीज, गोइंग टू डिस्को, गोइंग टू फ्रेंड्स, और ट्रेडिशनल घर में शादी हो गई। अब घूंघट निकाल के दिन भर घर पे रहना है, वो क्या बोलेगी? क्या बोलेंगी वो? आई हैव नो वेयर टू गो, कहीं जाने के लिए नहीं भाई, घर पे पड़े रहना पड़ता है हर समय, आई हैव टू स्टे एट होम ऑल द टाइम। तो यही है इमेजिनेशन की कमी सलोनी। ठीक है अंशु बेटा, चलो अब दूसरा सेंटेंस बोलो यस सब सर। लोग। सीखो, सामने आके चला जाए बिना सिखाए ये मत मानो। चलो एक आखिरी, तुम्हारे सारे दोस्तों का नंबर बिजी आ रहा है, ठीक है, कोई फ्री नहीं है, कोई ऑनलाइन नहीं है, क्या बोलोगे आप? सारे दोस्तों का नाम। सारे दोस्तों का नंबर स्विच ऑफ है, बिजी आ रहा है, ऑफलाइन है, कुछ नहीं हो रहा, अब क्या करोगे? क्या बोलोगे? कोई नहीं है बात करने के लिए, राइट? यही बोलोगे ना? कैसे बोलोगे इंग्लिश में? All friends. आई हैव नथिंग। नथिंग बोला इसने, नथिंग का मतलब ही नहीं समझी इसका मतलब। अच्छा। अगर समझ गई होती मीन नथिंग तो नथिंग नहीं या बोलती। मीन्स आई हैव नथिंग टू एनीवन, मुझसे नथिंग बात मतलब क्या करने के होता लिए है? कोई, नथिंग मतलब क्या होता है अंशु? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चीज होता है कि जगह होते है नथिंग मतलब? चीज। और हम आज चीज से बात करेंगे, अब हम चीज से बात करेंगे। नो I सर। have no one to talk. No, अब यही I यही have समझ गए तुम लोग क्यों nobody स्लो to लर्नर talk. हो? अब समझ में आ रहा है क्यों स्लो I सीखोगे? have nobody to talk. Nobody to talk. माना माना, आप सबसे थोड़ी बहुत गलतियां हो रही, लेकिन ये नथिंग और नो वन में फर्क नहीं कर पाए तुम? नहीं सुने हो नो वन? अंशु तुम नो वन कभी नहीं सुने हो? इस वजह से स्लो लर्निंग होगी मेरे बच्चे, याद रखना। ठीक है, सामने से लेके आ रहा हूं आपकी प्रॉब्लम, आपको आईने में दिखा रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, अब आप कैसे हेल्प करते हो अपने आप को देख लो। सलोनी, व्हाट्स गोइंग ऑन? समझ में आ रही बात है? कोई नहीं है बात करने के लिए यार, आई हैव नो वन। नो वन टू टॉक टू लगा दे टॉक के बाद, उसकी वजह बता देता हूं। वी टॉक टू समवन, वी टॉक समवन या वी टॉक टू समवन, पहले ही बता दो। Talk to someone. Talk Talk to to someone. वो टू someone. साथ में Talk रहना to चाहिए वी भाई, टॉक वी टू हैव आई हैव समवन। नो वन टू टॉक टू। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, चलो कोई नहीं, मैं हूँ टीचर का रोल क्या है, आप जहाँ फंसे निकाले आपको, ओके। लेकिन अंशु फंसना चाहिए था तुम्हें, वो नथिंग बोलना चाहिए था। नहीं। तुम तो उसको समझ लिए परमानेंट, क्यों नथिंग हमेशा रहेगा, ऐसा थोड़ी है बेटा। वो मतलब से आया है, मीनिंग की वजह से आया है, वो मीनिंग बदल दी मैंने, इसलिए मैंने ऐसा किया था। हम्म। रात में उठे, फ्रिज खोले, खाली मिला, चिड़चिड़ा के मुंह से क्या निकालेंगे? I have nothing to eat. I have nothing to eat. कुछ नहीं है खाने को। चलो ठीक है। ए फ्रेंड कॉल्स यू, और बता, और तुम चिढ़ के बोलते कुछ नहीं बताने के लिए, कैसे बोलोगे? उसने कहा या कम ऑन टेल मी व्हाट्स अप, तो क्या बोलोगे? आई हैव नथिंग टू टेल। वेरी गुड रेनू, वेरी गुड। मैं बस यही देख रहा हूं कि आप इससे क्या आगे कैसा स्टेप बढ़ा रहे हो, यही है सारे में, आई हैव नथिंग टू टेल, कुछ नहीं है बताने के लिए। और ये सब जानते हो कैसे आएगा? ऐसे नहीं आएगा। ये जो लोग भी बता रहे हैं इन सब के बारे में बता दूं मैं एक बात, चाहे वो मोनी हो चाहे रेनू हो, जो भी सही जवाब दे रहे होंगे, खुशी है, इन लोगों को ना मौका मिला इंग्लिश के साथ थोड़ा नजदीक रहने का। ये चीज मान लो तुम मेरी बात, तो तुम अपने आप को वहां पहुंचा सकते हो, अपने आप को इंग्लिश से थोड़ा नजदीक रख के। अब वो बचपन तो वापस आएगा नहीं, स्कूल जाकर फिर से इंग्लिश के साथ रह सके, तो अपने आप को एंटरटेनमेंट दो इंग्लिश में, प्रोग्राम्स देख लो इंग्लिश में, मूवीज मत देखो यार, मूवीज वाले इंग्लिश काम नहीं आती, ओके। मूवीज के डायलॉग्स लिखे जाते हैं स्पेशली, वो काम नहीं आते। नॉर्मल ऐसे ही दो चार लोग की बातचीत इंग्लिश में, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑन Spotify, on YouTube, on Facebook, on Instagram. There are lots of people
talk about their life just like that. उनको सुनो entertainment के लिए, just कोई कोई meaningful चीज मत करना कि बहुत ज्यादा सीरियस काम करना है, मजे वाली चीजें करो इंग्लिश के साथ, then you will learn better. Okay, something that you enjoy listening to. Okay. So we are done here, right? ED adjectives are clear. Now I'm gonna introduce a new idea to you. अब सर जरा देखना है आप. The book was interesting. The book was Interesting. book was interesting. और सुनो, the lesson was boring. मूवी के बीच से बाहर आ गए, क्यों बताइए? The movie was Boring. Boring. the movie was Boring. 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 किसने बोर्ड बोल दिया थोड़े सा हड़बड़ा करके? Boring. ओके, बोर्ड या बोरिंग? द मूवी वाज बोर्ड या बोरिंग? Boring. Boring. हाँ, यहीं पर फोकस का खेल है आपका कि आपका कितना फोकस है. देखो, ये लड़की शी इज बोर्ड, ये याद है ना अभी तक कि भूल गई है? शी इज बोर्ड. क्या करें क्या ना करें, यहां भी पढ़ा तुमने. आई हैव नथिंग टू डू, नो वेयर टू गो, आई एम सो बोर्ड. ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं, अपने फिल्म बीच में छोड़ दी, बाहर आ गए. व्हाई? द फिल्म वाज Boring. Boring. बोरिंग. ओके, आपको क्लास में पता नहीं चला क्लास टाइम कैसे निकल गया, बिकॉज द क्लास वाज Interesting. इंटरेस्टिंग. अब ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं कि नहीं है? आप क्लास को डिस्क्राइब कर रहे हो कि नहीं? द क्लास वाज बोरिंग, द क्लास वाज इंटरेस्टिंग, द मूवी वाज बोरिंग, द मूवी वाज इंटरेस्टिंग. ये एडजेक्टिव्स हैं कि नहीं? तो भाई ध्यान दो, ये देखने में लगेगा कंटिन्यूअस टेंस जैसा, लेकिन ये है एक एडजेक्टिव. कुछ लड़कों को ये क्या दिखता है? कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस टेंस दिखता है बचपन वाला. इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है. आई ध्यान हट गया पूरा. ठीक है, देखो यहाँ मेरे बच्चे देखो इस आदमी को. दिस मैन इज इंटरेस्टेड. अभी पढ़े थे हम थोड़ी देर पहले सलोनी. दिस मैन इज इंटरेस्टेड. खाली मुंह से इंटरेस्टेड बोल रहे, तो दिमाग में चल रहा है. अब मुझे एक बात बताओ सलोनी, कोई लड़का ट्रेन पे मिला तुमको, और एक बार के बाद दूसरा के बाद तीसरा के बाद चौथा सवाल तुमसे पूछा जा रहा है, तो क्या समझोगे उस लड़के के बारे में? क्या सोचोगे उसके बारे में? क्या सोचोगी? वो लड़का इंटरेस्टेड होगा मेरे जानने No में. He is interested in you. He is interested in you, right? और तुमने एक सवाल पूछा, उसने जवाब देकर मुंह घुमा लिया, तो क्या पता चला तुमको? क्या पता चला? अरे बोलने दो सलोनी को. यस सलोनी बोलो भाई, बुरा मत फील करो. नहीं मुंह घुमाएगा, लेकिन आप मान लो कैसे मुंह घुमा लिया, तो क्या समझोगी उसके बारे में? He is वो annoyed होगा. He is बोलो. He is blind sir, he is blind. इसका मतलब he is blind. Non-living thing. बोलो सलोनी, क्या बोलोगी? अरे जल्दी बोलो यार. Annoyed. He is annoyed. क्या बात है, कोई वजह है? नॉट इंटरेस्टेड खाली नहीं बोल सकती थी. एक सवाल का जवाब सुन के बता करके मुंह घुमा लिया, इसका मतलब ही इज नॉट. Not लड़कियों को interested. समझ नहीं होता कि लड़के नॉट इंटरेस्टेड हो सकते, इनको पता ही नहीं चलता है ना. कह रहे अनॉयड होगा, सोचो, समझ रहे हो? बहाना देखो, ही इज अनॉयड. क्या बात है. अच्छा, ही इज नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ही हैज अ गर्लफ्रेंड. अंडरस्टैंड? ओके, ही इज नॉट इंटरेस्टेड. तो देख दोस्तों, ये जब वर्ड मैं सिखा रहा हूँ, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, ही इज इंटरेस्टेड, तो क्या आपके जहन में नहीं जा रहा कि इंटरेस्टेड मतलब क्या हो रहा है? तो आप मूवी को इंटरेस्टेड बोल दोगे. Sir, when we use non-living thing because they are non-living thing. ना 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 ना, खाली ये सब बात नहीं सोचना. खाली ये सोचना है कि इंटरेस्टेड मतलब हमको जानना है, यही वाली फीलिंग. आप लोग यही नहीं करते हो. आप रुके रहते हो इंटरेस्टेड पे. कोई इंटरेस्टेड है तो उसका मतलब हाँ बताओ, यस यस, तो है ना इंटरेस्टेड. तो क्या मूवी लेकिन बोल रही है? हाँ बताओ, मूवी बोल रही है क्या आपको? No, sir. तो फिर मूवी को इंटरेस्टेड क्यों बोलोगे आप? कॉमन सेंस. इंटरेस्टेड का अगर मतलब निकाला, देखो प्रॉब्लम क्या, आप Yes, इंटरेस्टेड sir. Yes, बोल रहे I हो, गहरे नहीं जा रहे हो आप. ऊपर थोड़ा हल्के हल्के मारो, सरफेस तोड़ो, अंदर घुसो. इंटरेस्टेड मतलब क्या हुआ? हाँ बताओ. हाँ तो फिर हाँ अच्छा इंटरेस्टेड वाला एक्सप्रेशन आ रहा है दोस्तों मेरा कि नहीं आ रहा?
तो Yes. अब मूवी आपको बोल रही है, हाँ हाँ Hmm. बताओ, हाँ हाँ बताओ, आगे बताओ, मूवी बोल रही है आपको, No. तो फिर क्लास बोल रहा है आपको, हाँ हाँ बताओ बताओ, नहीं ना, Hmm. उसको क्यों बोलोगे हाँ। इंटरेस्टेड? कहना तो सलोनी, इंटरेस्टेड मतलब आप फील ही नहीं किए सर, अभी आप पढ़ के आगे। यही प्रॉब्लम है, कोई शब्द सुनाई पड़े, उसके सामने चेहरा दिख रहा है आदमी का, इतनी कोशिश करी हमने कि मीनिंग समझा दूं, फिर भी आप उसको मूवी को इंटरेस्टेड बोलोगे? मूवी इज इंटरेस्टेड? अगर कोई लड़का आपको सुबह शाम हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है? ही इज। Interested. तो आपको मूवी भी Interested. गुड मॉर्निंग भी लिखेगी क्या? मूवी लिखेगी गुड मॉर्निंग, हेलो सलोनी आई एम एक्स वाई जेड मूवी, हेलो सलोनी गुड इवनिंग आई एम एक्स वाई जेड मूवी। अगर ऐसा होता तो आप Yes. बोल देते दैट मूवी इज इंटरेस्टेड इन मी, बोल देते आप। बात समझ में आ रही है दोस्तों? आप कब बोलेंगे? मूवी आपको सुबह शाम मैसेज करने लग जाए और आपकी कहानियों को खूब इंटरेस्ट ले लेके मूवी सुनने लगे, हाँ बताओ और क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में, ओके, तो आप क्या Sir, बोलोगे? तो non-living thing, हाँ बोलो बोलो सलोनी। इसीलिए ना वो नहीं फिर अच्छे से बोलो ना, मैं समझ पाऊँ तुम कुछ बोल रही हो, तुमने कुछ बोला, आई डिडंट हियर, से इट अगेन। जो non-living है वो इसके लिए इंटरेस्ट नहीं हो रहा है ना। देखो मेरे बच्चे, मैं जितना बोल रहा हूँ उस पर तुम अगर शॉर्टकट मांगना चाहोगे, तुम लोग अपने दिमाग को आराम कराने के लिए, तो मैं पसंद नहीं करूंगा। रेनू अभी मैंने आपको जवाब दिया कि ये सब सोचने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है? बात समझ में आ रही है? आप मुझे बताओ कि जब मैंने कहा दैट मूवी इज इंटरेस्टिंग या द क्लास इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि लड़कों को पता नहीं चला कि टाइम निकल गया, तो मैंने कहा द क्लास वाज इंटरेस्टिंग, तभी ना लड़कों को पता भी नहीं चला कैसे निकल गया टाइम। इसका मतलब द क्लास वाज, Interesting. यानी लड़के Interesting. क्या कह रहे थे, हाँ हाँ जानना है हमको, हाँ हाँ और जानना है, तो टाइम निकल गया। अब मुझे ये बताइए, क्या कर रहे हैं आप लोग, इतना क्यों अपना आपको इस तरह से ले जा रहे हैं जहां पर मुझे वो सब जगह जाना पड़े जहां चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी आपके लिए? आराम से, ठीक है, थोड़ा सा आराम से जरा समझो बात को। यहाँ ये आदमी कह रहा है यस हमको जानना है, यस हमको जानना है, तुम क्या मूवी आपको बोलेगी यस हमको जानना है? No, sir. नहीं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि जब हमने कहा क्लास के मूवी के बारे में, मूवी को बीच में छोड़ के चले आए हम लोग, तो मूवी क्या थी? Boring. 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 बोरिंग। और हमें पता भी नहीं चला कि कैसे क्लास खत्म हो गया, और निकले तो एकदम फ्रेश फ्रेश अच्छा फील कर रहे हैं, इसका मतलब क्लास कैसा था? Interesting. इंटरेस्टिंग। Interesting. ठीक है, अब जरा रुको। ऐसी एक लड़की हो सकती है जिसके बारे में सबको मन करे जानने का, उस लड़की से बात करने का, तो वो लड़की कैसी है? इंटरेस्टेड। देखो देखो देखो, कुछ Interesting. इसको सुनना ही नहीं है, इसको मेरी बात ले ही नहीं जाना अपने दिमाग में, मैं कुछ नहीं मदद कर सकूंगा सलोनी ऐसे में। जो मैं बोला वो तो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए ना। तुम्हारे सामने ये चेहरा दिख रहा है इसका, डी का, इस आदमी का चेहरा दिख रहा है, ये था ना इंटरेस्टेड। मैंने कहा एक लड़की जिसके बारे में सबको जानना है, सबको चाहते उससे बात करना, सब लोग उससे बात करना चाहते हैं, तो वो लड़की इंटरेस्टेड हो गई, ऐसे हो गई। दोस्तों, एक ऐसी लड़की है जिससे 5 मिनट बात करने के बाद मेरा मन ये उब जाता है, कहते हैं हम रखो फोन यार नहीं बात करना, तो वो लड़की को कैसे डिस्क्राइब करोगे तुम? Boring. Boring. बोरिंग, राइट? बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई ऐसी लड़की जिससे सब लोग बात करना चाहते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, वो लड़की कैसी है? इंटरेस्टिंग। Interesting. इंटरेस्टिंग। जैसे मूवी इंटरेस्टिंग थी, सब लोग इंटरेस्ट ले रहे थे मूवी में, क्लास इंटरेस्टिंग था, क्लास सब लोग, तो उस लड़की में सब लोग इंटरेस्ट ले रहे, तो लड़की कैसी हुई? Interesting. Interesting. समझ में आया सलोनी? 2,000 रुपये एक्स्ट्रा भिजवा देना, ठीक है, अकाउंट भेज देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना एक्सप्लेन करवाइए, लड़की थका दी हमको। समझ में आ रहा है आप लोग को? कह रही है लड़की इंटरेस्टेड हो गई, 4 लड़के उससे बात करना चाहते इसलिए कि लड़की इंटरेस्टेड हो गई, नहीं लड़की इंटरेस्टिंग है। बात समझ में आ रही है? अब मुझे ये बताओ, तुमको क्या लगता है फिजिक्स कैसा है, इंटरेस्टिंग या बोरिंग है सलोनी? लेकिन सर ये लड़की 4 लड़के से बात करना चाहती तो अब तो इंटरेस्टेड ही मैंने कब रहती। बोला था कि वो बात करना चाहती? मैंने कब बोला था कि वो बात करना चाहती? दोस्तों मैंने एक बार भी बोला था ये लड़की कुछ और सोच रही नहीं, थी? मैंने कहा था चारों लड़के उससे बात करना चाहते हैं, लड़के उससे बात करना चाहते हैं, मैंने ये कहा था। इससे क्या पता चला दोस्तों?
कि लड़की बहुत सुंदर है, चलो ये भी बोल के बना सकते हो आप, बात आगे जा सकते हो, ठीक है। बट मेनली आई वाज ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड का आइडिया अलग होता है। आप महसूस करो ना, ये मत भूलना, खाली ये मत भूलना, ये चेहरा मत भूलना, डी वाला, ये जो है ना, हाँ जी बताओ जी, अच्छा, ओ ये है इंटरेस्टेड, ठीक है। आप मुझे अपनी कहानी बता रहे हो, मैं कह रहा हूं यार बंद करो यार मन में, तो एम आई इंटरेस्टेड? अच्छा ऐसा हुआ, फिर बताओ और क्या हुआ? You are interested. You are interested. गॉट इट। अब मुझे बताना कि कोई सब्जेक्ट का नाम लो और मुझे बताओ फिजिक्स के बारे में क्या राय है तुम्हारी। ऑप्शन देता हूं, सुनो, ऑप्शन देता हूं। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टेड, बोरिंग, बोर्ड। Boring. Boring. फिजिक्स। Physics is Physics boring. is boring. सलोनी Interesting. अपनी राय बताओ, 4 ऑप्शन दिया मैंने। इंटरेस्टिंग, Interesting. इंटरेस्टेड, बोरिंग, बोर्ड। Interesting. इंटरेस्टिंग। सलोनी को फिजिक्स इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन कर रही है मेडिकल की पढ़ाई। गजब है यार, लड़की भी अजब है। कैसे सलोनी? इफ यू फाइंड फिजिक्स इंटरेस्टिंग देन व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल? यू शुड प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग। टेल मी व्हाई, व्हाई? Saloni, if physics is interesting, then why are you studying biology? Okay, biology, Saloni, biology. What do you think? Boring. I'm not sure. Yes, sir. And still you are preparing for medical. कौन कराया तुम्हारे साथ ये ऐसा? ये कैसे क्या कह सकते हैं, अत्याचार कौन भैया किया? हाँ, भैया 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 seriously, I will never forgive him for this. So why didn't you tell him that you didn't want to do this? Why He didn't you don't tell have him? courage. Saloni, why didn't you tell him Yes. that you didn't want to do this? Okay, I'll talk to you later about it. That's silly. That's absolutely silly. I don't understand. I thought he would never do something like that. I know your brother. I never expected this from him, that he would decide for you without consulting you what you wanted to do. He always gave me that impression that he is not that kind. Did you tell him clearly that you wanted to study physics and maths? And he said, no, study biology. बोलता है कि अभी लग रहा है ना, बाद में तुमको हार्ड लगेगा। या वो डिसाइड कर लिया तुम्हें बात। अच्छा, what was your score in matric, by the way, and +2? Have you done +2? You've done +2 already Yes, sir. with biology? मैथ्स में मतलब कि मेरे को बनाना अच्छा लगता है, लेकिन मेरा पेपर मैथ्स नहीं था, दोनों लिए हुए थे, मैथ्स और बायो दोनों। तो मैं एक साइड रही नहीं, कभी मैथ्स की तरफ कभी बायो की तरफ, एक तरफ फोकस करती थी कुछ, मतलब कि फिर लगता था नहीं बोर्ड में मेन फाइनल में मेरा नंबर उससे जुटेगा, तो फिर मैं बायो की तरफ कभी अच्छी That हो was जाती थी। extra. I'm so sorry. I'm so sorry about it, But don't worry, you're very young. You can still try and you can still, do what you are thinking of. Okay. I'll talk to your brother about it. Don't worry. And I'll talk to you later. Okay. Let's see. Where were we? The lesson was boring. The lesson was boring. Yeah, the lesson was boring. The lesson was interesting. The book was interesting. Okay, notice this. The book was interesting and I was interested. The book was interesting, everybody, and I was interested. Interested. The book was interesting and I was interested. The movie was interesting and the people were Interested in the movie. Interested in the movie. Movie. The lesson was boring and the students were Bored. Students were bored. Okay. The lesson was boring and the students were bored. Do you see the connection? Yes, sir. Non-living, living पे मत ध्यान देना, connection पे ध्यान दो. The lesson was boring, और boring चीजें तुम्हें क्या बना देती हैं? Bored. अच्छा, अगर टीचर भी हो जाए, टीचर को देगा यार ये सर आ गए, इसका मतलब the teacher is interesting और boring और interested और bored, क्या बोलेंगे? अरे यार,
द टीचर इज बोरिंग, और वो जब क्लास में आते हैं तो स्टूडेंट्स कैसा फील करते हैं थोड़ी देर में? Bored. The Students students they are bored. bored. तो एक कॉज है, एक रिजल्ट है, ये समझ में आ रहा है? इतना खाली सोचो आप लोग, कॉज कौन है, रिजल्ट कौन है? Cause teacher है, result board है, students है. Right. अच्छा, इन दोनों वर्ड्स में से किसको कॉज मानोगे, बोरिंग को कि बोर्ड को? किसको मानोगे रिजल्ट? Bored. Result is Bored. 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 थैंक यू कल्पना। और कॉज क्या है भाई? Boring. Bored. कुछ कनेक्शन समझ में आ रहा है या बस ऐसी मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा? Teacher is boring. That's why students are bored. Yes. एग्जैक्टली, द टीचर इज बोरिंग, दैट्स व्हाई द स्टूडेंट्स आर बोर्ड। तो कॉज क्या बना, कॉज क्या बना? टीचर और बोरिंग ना? Yes. Yes sir, रिजल्ट yes क्या sir. बना? रिजल्ट Students and Bored. board. The student was bored. या एग्जैक्टली, Oh. ओके ओके। Khushi, I don't know, Ganpat, you guys wrote long time ago, I think. Yes, 6:23. Yes. I have no one to talk to, nobody to talk to लगा देना, okay? Yeah. और भाई सलोनी, I have nothing to wear clothes. ये क्या कर रहा था तुमने उस समय? फिर क्लोथ्स कैसे जोड़ा तुमने, जब हो ही क्या मेरे पास कुछ भी पहनने के लिए नहीं? और अगर कपड़े भी, बाय द वे बोलना भी है, तो ये कपड़े कहाँ जाएगा दोस्तों? यही नहीं समझ पाते ये लोग, ठीक है? अगर कुछ नहीं है पहनने के लिए तो कुछ नहीं की जगह पे ही ना कपड़े बोलना होगा हमें, कि कपड़े कहीं और चला जाएगा। सोचो सलोनी, सोचो। बोले सर वो तो मेरे से होता नहीं सर। ठीक है, देखो आपने कहा हैव नथिंग टू वेयर, या उसने कहा था ना हैव नथिंग टू डू, तो नथिंग मतलब कुछ नहीं, लेकिन कुछ है, कपड़े हैं, तो कपड़े कहाँ जाएंगे? I have some clothes to wear. बस समझ में आ गया ना, यही तो पॉइंट है। ये क्लोथ्स को ले गई पीछे उठा करके। आई हैव नो क्लोथ्स टू वेयर, आई हैव No clothes to wear. To wear. कोई दोस्त नहीं है मेरा बात करने के लिए। कैसे I बोलेंगे? have no friend to talk. आई हैव नो फ्रेंड्स No टू टॉक friends टू। to talk Friends. I have no friends to talk to. to. Talk तो to. नो बॉडी की जगह नो फ्रेंड्स बोलेंगे, फ्रेंड्स को आखिर No में ढूंढ friends फेंक to देंगे, talk ऐसा to. करेंगे क्या? महसूस नहीं करते आप लोग? और ये सब सिर्फ इसलिए होता है मेरे बच्चे, क्योंकि आप दूर रहते हैं ऑडियो फाइल्स। बैठ के किताब को पढ़िए, ऑडियो को सुनिए, दिन भर में 1 घंटे 1.5 घंटे दीजिए क्लास के बाद, तब ये सब चीजें दिमाग काम करेंगे। हम आपके लिए एक्सरसाइज है लाए हैं, हम आपके लिए खाना भी लाए हैं। खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए। आप लोग खाना नहीं खाइएगा, आप खाली दिखावा के लिए एक्सरसाइज के लिए हाथ पैर हिलाइएगा, थोड़ी होगा कुछ, बॉडी बन जाएगी। खाना क्या है दोस्तों? ऑडियो फाइल और बुक, वही है खाना। पढ़िए, सुनिए, ताकि दिमाग काम बेहतर करे आपका। चलो, ओके, फाइन। अच्छा बता ना, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होता है कि कंफ्यूज्ड? Question Confusing. Confusing. और And I am We are confused. confused. We are स्टूडेंट्स का, confused. टीचर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछ दे तो स्टूडेंट्स कैसे फील करते हैं? Confused. 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 कनेक्शन बन रहा है दोस्तों? Yes. Yes, sir. अगर किसी का बिहेवियर होगा जिससे आपको बुरा लगे तो इंसल्टिंग बिहेवियर है या इंसल्टेड बिहेवियर है? Insulting behavior. Insulting. और आप कैसा फील करते हो? I feel Insulted. Insulted. आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes. Yeah. Connection, the relation Yep. between Yeah. the two words. Okay. Yes, sir. Not sure how to help you with that. Arey chup. All right. Number 3. Exercise 3. I don't know. Alexa is just interfering unnecessarily. Okay. Come on, let's do exercise 3, everybody. You guys have a few minutes. Ganpat, Anish, Shazia, all of you have your cameras off. I don't know why. Every time I have to ask you. Shazia, your camera is on, but you are not visible. Nishat, beta, you understood what I explained?
Yes, sir. So you're a okay, let go of it. Let's do exercise done. 3, then I will talk to you. Good, good, good. Exercise 3. Okay. Ganpat ki light ka chalega. Ganpat says, in my room light is gone, so I cannot turn on the camera. Okay. So which school did you guys study in? Ganpat, Anshu, Suman? Which school were you all together in? Good, Khushi. Yeah. Anshu, Ganpat, which school did you go to where you guys became good friends? Sir, you know Sisudyan? Shishudyan? Yeah. It means you guys were very And small kids when you went there. yeah, and 10th Manas Bhumi. So you went to 2 different schools, but all of you were together there. So in Shishudyan, when you first met, how old were you guys? In class 3, sir. Class 3? I know, yeah, in class 3, but I study in class nursery. Yeah, I know you studied there from class nursery, but you met Ganpat when you were in class 3. 3 or 4. I 3 or forget. 4. 3 or 4. Still it is childhood friendship, guys. अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, मुझे ये सब सुन के ना बड़ी बड़ी रोमांटिक फीलिंग आती है कि यार ये तो बहुत बढ़िया है यार कि कुछ लोग हैं जो बचपन से साथ है अभी तक. बड़ी अच्छी बात है. You know, because I don't have anybody like that. You know, most of my friends are friends who came in my life much, much later. I have only one person in my life who I met when I was in class 3 actually. And we don't talk very often. Have been together. Lovely. Unbelievable. Okay. Are you all done? Shall we check? Yes, sir. Yes, sir. Life in New York is very Exciting. Exciting. Mm, yeah, है ना? Life in New York is very exciting. Exciting. Okay. It's my birthday tomorrow. I'm really Excited. Excited. अब मेरे को Really क्या डर excited. लगता है सलोनी, अंशु, कि आप लोग ये पढ़ के भी उसको सोचोगे नहीं कि एक्साइटिंग बोलेंगे मतलब क्या है कि आदमी वहां जाए तो लगता है यार वाह वाह वाह. तो लाइफ इन न्यूयॉर्क इज वेरी एक्साइटिंग एंड द पीपल हु आर इन न्यूयॉर्क, हाउ डू दे फील? They are excited. Excited. सोचना तुम्हारा काम है, पढ़ के आगे नहीं बढ़ सकते तुम. ये सोचो, लाइफ इन न्यूयॉर्क इज वेरी एक्साइटिंग मतलब क्या? इट मीन्स व्हेन यू लिव इन न्यूयॉर्क यू फील हैप्पी, एक्साइटेड. Yeah. Why life in Bihar Shif is not very exciting? You know, the same life every day, the same things every day, nothing new. But in New York, you will have new things to do, new places to go to, okay? New people to meet. And that's why life in New York is very exciting. It's my birthday tomorrow. I'm really Excited. Excited. अभी इसको सोचो कि भाई मेरा बर्थडे तो मैं कैसा फील कर रहा हूँ, उसी को कहते हैं आई एम रियली एक्साइटेड. तो इसको कहते हैं समझना, खाली बोल के नहीं बढ़ जाना आगे. ये तुम्हारी गलती है, मानो. अगर मानोगे कि हाँ यार हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग ना पढ़ते हैं बढ़ जाते हैं आगे, उसको सोचते नहीं कि हुआ क्या, कनेक्शन क्या है रियल लाइफ से. इट्स माई बर्थडे टुमारो, आई एम रियली एक्साइटेड. अब मुझे बताओ, एक 75 साल का आदमी जिसको लगता है कि यार यार अब 2-4 साल जीवन बचा है, वो क्या फील करेगा? इट्स माई बर्थडे टुमारो, आई एम रियली एक्साइटेड, ऐसा करेगा वो? No, sir. No. यही सब Scared. चीज सोचना तुम्हारा काम है. यस यस I कल्पना. said scared, sir. He feels स्केर्ड, यहाँ के 1 साल अब बचेंगे कि नहीं अगला पता नहीं, ये और 1 साल हो गया, राइट? इसलिए खुश हो जाता होगा सर. सॉरी संयुक्ता मैम. That's why he is happy. His birthday is 75th birthday. So he happy.
I don't know. Next year I leave or not. I don't know. I don't know. I don't feel excited about my birthdays. Not anymore. The marathon runners were very Tired. Excited. Tired. Tired, sorry. Tired. tired. The marathon runners were very tired. Marathon 20, 30 kilometers, 40 kilometers. So they were very tired. That game of tennis was very. Tiring. Trying. मैच लंबा चला या कम देर चला? टेनिस का गेम लंबा देर चला या कम देर चला? Trying. Lamba. सलोनी, इस बारे में सोची होंगी तुम? खाली इतना खाली बोल दो कि जब वहां तुम लिखी टायरिंग या टायर्ड कुछ भी, तो उसके बाद सोची तुम उसके बारे में कि क्या? नहीं, ये सोचना कब शुरू करोगे मेरे बच्चे? दैट गेम ऑफ टेनिस वॉज टायरिंग बोलने का मतलब क्या हुआ? क्या बोलना चाहता है कोई आदमी? कि लंबा देर चला कि तुरंत खत्म हो गया? क्या बोलना चाह रहा है वो? Tiring means सर क्या हुआ सर यहाँ पे? मैम, दिस इज इजी. यू कैन अंडरस्टैंड. यू कैन अंडरस्टैंड. ट्रस्ट मी, यू कैन अंडरस्टैंड. Tired. प्रॉब्लम खाली ये है कि अभी तक आप जो कर रही हैं उसको अपने अंदर नहीं जाने दे रही, नहीं तो हो जाता. हुआ क्या है, अगर मैंने कहा स्टूडेंट्स आर बोर्ड, तो आप अपने आप से क्या समझ गई कि द लेसन वाज? वो समझ गया सर, यहाँ नहीं नहीं meaning नहीं, अगर अभी नहीं समझी ना, अगर वो समझ जाती तो यहां भी आ जाती हैं आप समझ में. मैं फिर से पूछता हूं, अगर किसी ने आपको बताया कि द स्टूडेंट्स वर बोर्ड, इसका मतलब आपको क्या पता चला लेसन के बारे में? संयोगिता मैम, lesson was bored. Lesson was boring. Lesson was boring. So the ठीक है. students were bored. अब मुझे बताइए, प्लेयर्स आर टायर्ड, द प्लेयर्स आर Tired. तो गेम कैसा था? थकाने वाला. थैंक यू, थैंक यू. Tiring. उसका मतलब क्या निकला मैम? समझ गए सर. I तो मैंने understand. क्या कहा था कि आप समझ जाएंगे अगर आप पीछे से चल के आएंगे थोड़ा सा, तो यही कहा था ना मैंने. आपको याद रखना है कि अगर आप ऐसे, मैं वहां पर समझता हूं जब आप एक ऐसा सवाल पूछते हैं जहां पर एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, तो मुझे पता है सवाल के क्वालिटी से मैं अंदाजा लगाता हूं कि आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए या पीछे वाली जानकारी दोबारा से दोहराना है मुझे. तो आपने जो पूछा टायरिंग मतलब क्या, मैं समझ. Sometimes, no sir, I didn't listen this type of word. मैं तो खुद मानता हूं, आप खाली नहीं, सारे लोग नहीं सुने हैं, लेकिन अब जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है उसकी वजह से वो समझ में आना चाहिए. रेनू, yes sir, yes. टायरिंग आप पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन अभी बोरिंग सुन रहे तो उससे Tiring सुना अंदाजा ही. लगा रहे कि ये आईएनजी ईडी में क्या Yes, कनेक्शन है. sir. Yes, sir. I am also. आप मुझे बताइए कि पूस माह महीने में आपको पिठा बनाना पड़ता है. कुछ लोग, कुछ घर वाले ना, गृहणियां भागती हैं उससे, कहते हैं ना 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 ना, पिट्ठा पिट्ठा नहीं, मेरे को मत परेशान. दे थिंक मेकिंग पिट्ठा इज Very tiring. एंड दे फील Very tired. They feel very tired. बताइए कैसा कनेक्शन बना? They felt very Understand sir. I understand sir. Sir, I am I leaving. didn't listen this type of word sir, so नो प्रॉब्लम्स. मैं इस बात से कोई परेशानी नहीं ले रहा. ओके कास्टेसिया, आपने पहले नहीं सुना, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज समझिएगा. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका हर एक आईएनजी और ईडी का एक कनेक्शन है. हर एक आईएनजी और ईडी का एक कनेक्शन है. और अगर आप ईडी समझ जाओगे, आईएनजी ऑटोमेटिकली समझ जाओगे. आईएनजी समझ गए तो ईडी ऑटोमेटिकली समझ जाओगे, क्योंकि देयर इज अ कनेक्शन. चलिए मैं आपको सिखाता हूँ संयुक्ता मैम. आपने ये दोनों वर्ड्स में से कौन सा सुना है? एम्बैरेसिंग, एम्बैरेस्ड, कौन सा सुना है? embarrassing, embarrassed सुना है, दोनों सुना है. अच्छा चलिए, अब मैं छोड़ Tiring देता हूँ इसका उसको. याद नहीं मुझे कि नहीं मैं सुना है शायद. देता हूँ ना आपको, और देता हूँ, ठीक है. इन्फ्यूरिएटिंग, इन्फ्यूरिएटेड, कौन सा सुना है दोनों में से? दोनों ने सुना. No one. नाइदर, नाइदर, नाइदर. Neither. Neither. ओके, और रुक जाइए थोड़ा सा, और कुछ एग्जांपल लेने दे मुझे दिमाग में. तो infuriating and infuriated, और कोई मुश्किल वर्ड सोच रहा था मैं. अच्छा चलिए थोड़ी देर बाद बोलता हूँ, थोड़ा वो लेके आना चाहता हूँ जहां पे आपकी मदद कर सकूं, खाली परेशान नहीं. ओके, नंबर 3,
The child's behavior was really Annoying. Annoying. Annoyed. Annoying. annoying. Ke Annoying. annoyed? Annoying ke annoyed? Annoying. Annoying. Really annoyed. Annoying. Child's behavior was really Annoying. Annoying. कंफ्यूजन हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं मदद करता हूँ, ठीक है? आप मुझे बताओ, क्या बच्चे के चेहरे के बारे में बात हो रही है? बच्चे के फीलिंग के बारे में बात हो रही है? नो सर, बिहेवियर, हाँ, नहीं हो रही है। Behavior के बारे में। बिहेवियर के बारे में। और उसके बिहेवियर से असर किस पे पड़ेगा? पेरेंट्स को। राइट। तो आप मुझे बताइए, द चाइल्ड्स बिहेवियर वाज रियली Annoying. annoying. And the parents were Annoyed. 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 the teacher was Annoyed. Annoyed. because nobody Did the homework. Did the homework. अब आप इसको सोचो, अब आप इसको रियल लाइफ में सोचोगे, टीचर के क्लास में गए, कोई होमवर्क नहीं किया, टीचर का चेहरा कैसा हो जाता है? Annoyed. Annoyed. The teacher was annoyed, okay, because nobody did you. homework. Okay. The wife was annoyed because the husband forgot her birthday. Okay. Number 4. Okay, what is your most annoying habit? What is your most annoyed habit? कौन सा सही है? Your annoying habit. Annoyed. Annoying What habit. is your most annoying habit? Annoying habit. Annoying habit. What is your most annoying habit? Yes. Want to talk about it? Annoying habit. You want to talk about it? Your most annoying habit? I don't want to talk about it. I don't want. Food, No? very delicious food, and my children ask, अच्छा नहीं है, कैसे बनाई हो, ये है, वो है. मैम, मैंने क्या पूछा? What is your most annoying habit? I asked, no sir. मैंने पूछा आपसे, What is your most annoying habit? क्या हुआ इसका हिंदी? अच्छा, आप सोचें, हाँ, जितने भी आपने सोची, बोरिंग और बोर्ड से क्या बना? हिंदी में क्या बोलेंगे बोरिंग को? बोर करने वाला कि बोर होने वाला? बोर करने वाला सर. और बोर्ड मतलब जो बोर हो गया है ना? Yes, sir. Yeah. कंफ्यूजिंग से क्या पता चला? Confuse करने वाला. Confuse करने वाला. राइट। टायरिंग से क्या पता चला? टायर्ड करने वाला। Tired करने वाला. तो आप मुझे बताएं, जब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर मोस्ट अनोइंग हैबिट, तो ये अच्छी आदत पूछ रहा हूँ कि बुरी आदत पूछ रहा हूँ आपकी? बुरी. बुरी ना सर. बुरी। तो आपकी सबसे बुरी आदत क्या है? कि बच्चे खाना नहीं, वो जवाब दे सकते थे, नहीं ना? गलत जवाब था ना? चिल्ड्रंस. हाँ, वही बता रहा हूँ, गलत जवाब दे गई वो गलत समझ गई, अनोइंग को गलत समझ गई, वो दूसरों के बारे में समझ गई। मैंने पूछा था व्हाट इज योर मोस्ट अनोइंग हैबिट, आपकी सबसे ज्यादा अनोइंग हैबिट क्या है? एंड आई थिंक नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट। कोई नहीं बात करना चाहता होगा इस बारे में पब्लिकली, राइट? आई सर्टेनली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मुझे तो पक्का नहीं करना। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट माय मोस्ट अनोइंग हैबिट। ओके, I want to listen, sir. my of course you want to. I want to know about you, Kalpana. I want to know about you. Why don't you tell us your most annoying habit? और नहीं तो आप कहोगे तो मैं एक लिटिल बर्डी से पता करके बता दूंगा आपको your most annoying habit. I have some. Actually, my most annoying habit is joining your class, sir. Okay, that was nice. Actually, after work I feel very tired, so I don't want, but I have to, sir. Okay, who feels annoyed by your most annoying habit? दोस्तों, if you have a most annoying habit, तो लोग ना चिढ़ेंगे उससे। Yes, sir. Yes. चिढ़ता है आपकी कल्पना, आपकी इस आदत से कोई नहीं चिढ़ता, सब खुश होते हैं that you come here. So it's not an annoying habit at all. Everybody is happy that you are here. Right. Right, guys? Maybe my mobile Yep. feel annoyed. I don't know. I have never asked your mobile. Ask your mobile. Mobile beta, do you feel annoyed? Maybe he will say yes. Okay, guys. I think I'll tell you a little bit about it, okay?
most dads have this annoying habits. They do things to annoy their children. Okay. So my most annoying habit has something to do with my daughter. और उसको चिढ़ाना है, और वो क्या करते हैं हम, when I have to sneeze, okay, when I have to sneeze, I take my hand in front of me, okay, but I don't touch my nose. I don't cover my face. I just keep it here and I say, "Chee." Okay. So my daughter says, "Why the hell did you put your hand here if you were not gonna cover your face?" And I do it sometimes in her direction, and she's a little bit of what do you call it? What is that word? Hygiene conscious. Okay. So she gets a little annoyed with me, not a little, quite a bit annoyed with me. Okay. And I laugh about it. So that's my most annoying habit with my daughter. With my wife, I think it will be personally, ignore it. Okay. So yeah, annoying, right? Most annoying habit. If you want to talk about your most annoying habit, feel welcome to write, sentences in the group about it. Guys, the whole page will be your homework. Exercise 4. Okay. आप कर सकते हो. आपको समझ में आया संगीता मैम? कोई भी ing मतलब करने वाला, टायर्ड कर देने वाला है ना. तो annoying मतलब annoy कर देने वाला. इसलिए मैंने उसको कॉज से रिलेट किया था कि वो कॉज है, कॉज रीजन बनता है वो, और रिजल्ट होता है ईडी. ओके. तो अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं, आज का लेसन समझ में आया एवरीबॉडी, तो प्लीज डू एक्सरसाइज 4. ओके. देयर आर 4 कन्वर्सेशंस. कंप्लीट देम विद ऑल द एंड आईएनजी एडजेक्टिव्स यू हैव ऑन दिस कौन पेज. सा एडजेक्टिव लगाएंगे सर? क्या मतलब? क्या मतलब? कौन सा एडजेक्टिव तुम्हें अपने मन से decide लगाने? तो जब कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा, क्या चल रहा है, कौन लोग हैं, क्या फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, पढ़ के पता चलेगा ना बच्चे, उसी से डिसाइड करना है. हाँ सर. आई कैन टेल यू वन थिंग, was पेज में से boring. सारे वर्ड्स यूज करने हैं. जितने वर्ड्स इस पेज पे यूज हैं उसी में से कोई यूज होगा. ओके. Sir, I said I feel annoying to join your class, but nobody is annoyed. 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 But You feel nobody annoyed. is annoying. आप अनॉयड But फील no, करते हैं क्लास ज्वाइन करने but के लिए. nobody is annoying here. That means annoyed is right. आपने मतलब कहा आई फील अनॉयड टू जॉइन द क्लास, मतलब क्लास ज्वाइन yes, करने के बाद आप अनॉयड फील करते annoyed करती हूँ, but आपने कहा कि nobody is annoying from you. तब मैं सोच रही हूँ सर कि दोनों में ये आ रहा है कि नहीं. हैं. नहीं. आपने अपनी अनोइंग हैबिट बताई थी ना. हम्म. अनोइंग हैबिट. जब आपकी अनोइंग हैबिट होगी तो कोई तो अनॉयड होगा ना. Yes, sir. Guys, if you have an annoying habit, then somebody has to feel annoyed. Isn't Yes. it? Yes. Yeah. तो अगर आप किसी चीज को अनोइंग बताओगे तो कोई तो होगा जो ईडी से फील करेगा उसकी वजह से. आई होप यू अंडरस्टैंड. Yes, sir, Yes, sir. understand. आप लोग ने स्क्रैच Understood. करना शुरू कर दिया. मैंने एक सवाल पूछा और आप ऐसे करने लगे, तो बाद में आप मेरे क्वेश्चन को क्या बोलोगे? सर आस्क्ड अ वेरी Annoying question. ऐसा करने से अनॉयड हो जाता है कोई No, थोड़ी. no, no. Difficult. I'm confused. Difficult and Confusing, sir. difficult. Confusing. Confusing question. Exactly. Okay. यही तो मैंने बोला सर कि जब मैं अच्छे खाना बनाती हूँ बच्चे उसको अनोइंग करते हैं तो मुझे अनॉयड हो जाती हूँ. वो मैंने गलत आपने बोला अपने क्या? बच्चों की अनोइंग हैबिट बता दी, अपनी अनोइंग Yes, हैबिट yes. नहीं बताई. आई आस्क्ड यू अबाउट योर अनोइंग हैबिट्स. ओ अच्छा. I didn't say tell me your children's annoying habits, right? तो उसी से ना मेरा जुड़ा है, तो हमको भी अनॉयड आई एम What was my question? What was my question, Sayogita ma'am? What is your most annoying habit? Your habit. आपकी आदत. Your habit. देख रहे हैं दोस्तों कैसे धीरे धीरे हम लोग की इंग्लिश सही होगी, क्योंकि जो कचड़े हैं दिमाग में, कंफ्यूजन वो खत्म होते चले जाएंगे धीरे धीरे. हो रहे हैं ना संयुक्ता मैम धीरे धीरे? क्योंकि मैंने कहा था योर अनोइंग हैबिट, योर मोस्ट अनोइंग हैबिट. मैं अपनी मम्मी के हिसाब से बताता हूं. अगर आप मेरी मम्मी से पूछोगे व्हाट इज विनय's मोस्ट अनोइंग हैबिट, योर सन्स मोस्ट अनोइंग हैबिट, तो वो बोलेंगी ही गोज टू द वॉशरूम विद हिज ब्रश, goes to the toilet with his toothbrush, and he doesn't wash his hands when he comes out. I don't wash my hands when I come out of the bathroom. मेरा भी अपना लॉजिक है दोस्तों. मैं किस लिए हाथ धोऊं, किस चीज के लिए हाथ धोऊं? नॉब घुमाने के लिए हाथ धोना पड़ता है क्या?
नॉब घुमाने के लिए हाथ धोना पड़ेगा? टेल मी प्लीज। Yes, sir. क्या बात करो That कल्पना, knob is डोंट No, not sir. hygiene. Come on. That knob is not hygiene, sir, because it is in bathroom. अच्छा अच्छा, तो फिर तो बाथरूम में हवा भी जो नाक से सिलेंडर लेके जाओ ऑक्सीजन का। You can Come on. wear a mask. Oh, really? I didn't know that people would have such problems. No, no, no. नॉब अगर सारे लोग घर के समझदार हैं तो द नॉब इज सेफ, ओके? अब स्टूपिड लोग हैं तो अलग बात है, नॉब कैन बी अनहाइजीनिक, बट इफ पीपल आर सेंसिबल देन द नॉब इज सेफ. So if you talk to my mom about my most annoying habit, my mom would say, he doesn't wash his hands when he comes out of the toilet. He said, what for? We don't do the traditional thing. We have the, what do you call them, jets and the knobs and everything. So why do we have to? Of course. So annoying habit, my annoying habit. My mom feels annoyed. My daughter feels annoyed. My wife feels annoyed. Okay. They also have annoying habits and I feel annoyed. Chalo, मैं बंद करता हूँ because it's 7:07. We will continue. Guys. From We will Monday. continue on Monday. Okay. But please do attention. I will share with you the record. नया idea है, थोड़ा time लगेगा, but you will understand this. Okay. And do the exercises. See ya. Bye bye everyone.